Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. Currently we are in chapter number 4 ledger, and today we are going to start with question number 8 from the practice problem. Let us move towards the textbook. See this is question number 8 on page number 120. Journalize the following transaction and prepare ledger account. Two things we have to do here. First one, we have to pass journal entries for the following transaction and then convert them into ledger account in the books of Sanjeev. Okay, so approximate total 7 transactions are there. So I'm starting with the solution. Question number 8 in the books of Sanjeev. Format is ready with me. Right hand side you can see the question. We will start solving it one by one. 1st June 2019. So the transaction is cash received from Raju 10,000 for business. Sorry, 10,000 for commission. So commission is income for us, nominal account, and cash is asset, real account. The rule of the real account, debit what comes in, and rule for the nominal account, credit all income and gains. Hence cash account will be debited and commission account will be credited. ठीक है, तो यहाँ पर हम ईयर पुट कर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 2019, 1st June 2019, we can write cash account debit amount is 10,000 to cash commission account. To commission account 10,000 being commission received in cash. Being commission received in cash. Next, 3rd June 2019. 3rd June 2019. Intra-state sale to Rakesh rupees 3,000 and SGST at the rate 2.5% and CGST at the rate 2.5% applicable. हमने क्या किया है? सेल किया है. ऑब्वियसली कहीं पर पेमेंट की बात नहीं हुई है. दैट मीन्स इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो सेल किया है तो यहाँ पर जर्नल एंट्री आ जाएगी राकेश अकाउंट डेबिट. जो भी अमाउंट आएगा पर्टिकुलरली उसके साथ फिर हम यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी ले लेंगे. वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेल का ट्रांजेक्शन है तो अकॉर्डिंगली आप उसको क्रेडिट करेंगे और फिर सेल्स अकाउंट भी क्रेडिट होगा. गेटिंग इट? तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. राकेश अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST at the rate 2.5% account to input SGST at the rate 2.5%. Okay, and next one,
टू सेल्स अकाउंट, राइट। तो यहां पर सेल्स का अमाउंट क्या था? सेल्स अमाउंट इज 3000 रुपीज। 3000 पे वी विल कैलकुलेट 2.5%, that is 75 rupees. So 75 we will take the total 3150. Being goods sold on credit and GST paid. ठीक है ना? अच्छा, यहां पर एक मिस्टेक है, इंस्टेड ऑफ इनपुट, क्योंकि ये सेल है तो यहां पर क्या आना चाहिए? इट शुड बी आउटपुट। तो मेक नेसेसरी चेंजेस, वी विल मेक इट आउटपुट। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ओके, नेक्स्ट वन, 5th June 2019, 5th June 2019। ओके, रिसीव्ड फुल अमाउंट फ्रॉम राकेश। अभी राकेश से कितना कलेक्ट करना था? जस्ट चेक इट आउट, 3150, वो पूरा मिल रहा है। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राकेश इज गिवर, उसको क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू Rakesh's account. Amount 3150, 3150, being amount received from Rakesh. Next, 8th June 2019. On 8th June 2019 क्या ट्रांजेक्शन हुआ है? जस्ट चेक इट आउट। इंट्रा स्टेट परचेस, दिस टाइम दे हैव गिवन परचेस from Mangesh rupees 2000 and SGST at the rate 2.5% and CGST at the rate 2.5% is applicable. Again यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सो परचेसेस अकाउंट डेबिट। दिस टाइम वी विल राइट इनपुट CGST and SGST। ठीक है, सो इनपुट CGST at the rate 2.5%, account debit, input SGST at the rate 2.5%, account debit to, what's the name of the creditor? Mangesh, so Mangesh's account। तो यहां पर हमने परचेस किया है 2000 का प्रोडक्ट, गुड्स ऑफ रुपीज 2000, और उस पर 2.5% हम कैलकुलेट करेंगे, दैट कम्स टू 50 रुपीज। तो टोटल 2100 we have to collect it from, sorry, we have to pay to Mangesh, being goods purchased
on credit and GST applicable. GST applicable. Next, on 11th June 2019, पेड द नेसेसरी अमाउंट टू मंगेश. मंगेश का जो भी नेसेसरी अमाउंट था, क्या नेसेसरी अमाउंट था? 2100. वो हमने क्या किया? पे किया है. सो मंगेश's अकाउंट डेबिट. Mangesh's account debit to cash account, and the amount is 2100, being amount paid to Mangesh. Okay, amount paid to Mangesh. 18th June 2019, paid rent. 18th June 2019, पेड रेंट. रेंट पे किया है तो रेंट इज एन एक्सपेंस, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा. सो रेंट अकाउंट डेबिट. हाउ मच वी हैव पेड? 2500 to cash account. 2000 being rent paid. So next date, next transaction is on 24th June 2019. Paid mobile bill rupees 1000, out of which 700 for office use and for rupees 300 for personal use. So office use का है तो हम उसको लिखेंगे mobile expenses, or we can write mobile bill expenses account debit so 700 is for office use और 300 जो पर्सनल यूज है उसको क्या लिखेंगे हम? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट. टू कैश अकाउंट. तो ड्राइंग अकाउंट कितना हुआ? 3300, टोटल 1000, बीइंग expenses paid. ओके, डन विथ जर्नल. अब हम एक एक करके जॉट डाउन करेंगे विच अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर. फर्स्ट वन इज कैश अकाउंट एंड देन सेकेंड वन इज कमीशन अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट वी नीड लिटिल बिगर वन. तो कैश अकाउंट ऑलरेडी इट इज देयर. आई विल प्रिपेयर कमीशन अकाउंट ओवर हियर. कमीशन अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट वन एज वी कैन सी
Rakesh's account is there, so I will write over here. Rakesh's account. After that, we have output CGST, output SGST account. Similarly, we have input CGST and input SGST account. Next, we are required to prepare sales account and purchase account. So already you can see at the last we have purchase account over here, and we also have sales account at the bottom. Okay. Other than that, we require accounts of Mangesh and Rakesh. So I will write over here Mangesh's account. Rakesh's account. Other than Mangesh and Rakesh, we need to maintain a rent account, mobile expenses account, and drawing account. A rent account, mobile expenses account, and drawing account. Drawings account. So now I am ready with all the ledger accounts. One by one, we will start shifting. Okay, from journal to ledger. So on day 1, 1st June, cash account is debited and commission account is credited with rupees 10,000. So cash account on 1st June 2019, cash account is debited
we will write to commission account, amount 10,000. Similarly, commission account will get credited by cash account 10,000. First June 2019 we have completed with our first journal entries, तो उसको हमने ट्रांसफर कर दिया लेजर में. On 3rd June राकेश का अकाउंट देखिए डेबिट हुआ है 3150 से. सो राकेश के अकाउंट में we are going to write these all things. In the books of Rakesh, to output CGST account, to output SGST account and to sales account. ठीक है, ऐसे हम मेंटेन करेंगे. राकेश का बुक डेबिट हो गया, और यहां पर एक एक करके अमाउंट हम मेंशन कर देते हैं 75, 75 and 3000. ओके, और सारे जो ट्रांजैक्शन के डेट हैं वो आ जाएगा 3rd June 2019. So after debiting Rakesh's account, one by one, we will mark posting for output CGST, SGST and sales account. तो output CGST में credit side में हम जाएंगे. Output CGST, we will move towards credit side, and there we will write by Rakesh's account, amount 75 and date 3rd June 2019. Okay, similar effect will be on output SGST like this for 75 rupees, and sales account में आप देख रहे हैं वहां पर how much amount will be there, 3000. तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा. यहाँ पर सेल्स अकाउंट मैंने मेंटेन किया हुआ है, सो आई विल राइट 3rd June 2019 बाय राकेश's account, amount 3000. So in this manner second transaction is over. On 5th June 2019 कैश अकाउंट इज डेबिटेड. तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, राकेश का अकाउंट क्रेडिट करेंगे, अमाउंट 3150. ठीक है, 5th June. तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं 5th June 2019. ठीक है, यहां पर मैंने मेंशन किया कैश अकाउंट में वी विल राइट टू राकेश's अकाउंट, amount will be 3150. सिमिलरली राकेश का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा. यहाँ पर राकेश का अकाउंट है, देखिए राकेश के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में यहाँ पर मार्क करेंगे ऑन 5th June 2019 वी विल राइट बाय कैश अकाउंट 3150. एंड यू विल सी यहाँ पर जो टोटल है
वो यहाँ पर क्लोज होता है, टैली होता है 3150 पे, तो कोई बैलेंस यहाँ पर आएगा नहीं। गेटिंग इट? तो राकेश का अकाउंट क्या हो गया यहाँ पर, क्लोज हो गया, एंड वी कैन मार्क डबल अंडरलाइन लाइक दिस। ठीक है, चलो 5 जून के बाद 8 जून 2019 परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है, और आप देख रहे हैं मंगेश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है। सो व्हाट वी कैन डू, मंगेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड में हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो मंगेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड में आई विल राइट बाय परचेस अकाउंट, बाय इनपुट CGST, एंड बाय इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, डेट मेंटेन करेंगे। व्हाट इज द डेट, 8 जून 2019। सो मंगेश के अकाउंट में हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं 8 जून 2019। परचेस का अमाउंट था 2000, और GST जो भी था CGST और SGST दैट वाज 50 ठीक है। सिमिलरली परचेस अकाउंट में हम यहाँ पर जाएंगे, डेबिट साइड वी विल मार्क टू मंगेशस अकाउंट, amount 2000, 8 June 2019. Then we will move towards input CGST and input SGST. वहां पर भी हम लिखेंगे टू मंगेशस अकाउंट 50 रुपीज, 8 June 2019. And similar effect will be in input SGST. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन भी ओवर हुआ। 8 जून इज डन। आफ्टर 8 जून 11 जून को हमने मंगेश को पे कर दिया। मंगेश का अकाउंट डेबिट हो गया 2100। सो मंगेश के अकाउंट में डेबिट साइड वी विल राइट टू कैश अकाउंट 2100 ऑन 11 जून 2019। और यहां पर भी ये अकाउंट आप देखेंगे इट हैज गॉट क्लोज्ड, कोई बैलेंस नहीं है, जितना अमाउंट पे करना था हमने पे कर दिया, 2100 पे ये क्लोज हो गया, राइट। डबल अंडरलाइन करके इसको क्लोज करेंगे, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि हमने अमाउंट पे किया है। सो वी विल राइट ओवर हियर बाय मंगेश, अमाउंट इज 2100, 11th June 2019. आफ्टर मंगेशस ट्रांजेक्शन 18th जून को हमने रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। वी विल राइट टू कैश अकाउंट 18th June 2019। कितना रेंट पे किया हमने, जस्ट चेक इट आउट, 2500। ठीक है,
So we will mention here 2500 and similarly कैश अकाउंट में जाकर के हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे बाय रेंट अकाउंट 2500 and the date is 18th June 2019. ओके लास्ट यहां पर देखिए कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम पहले मेंशन कर देते हैं 24 जून 2019 को बाय मोबाइल बिल expenses account amount is 700 and by drawings account 300. तो कैश अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया अब मोबाइल एक्सपेंसेस और ड्राइंग में मेंशन करेंगे डेट इज 24th so mobile expenses over here to cash 700 24th June 2019 सेम वे ड्राइंग्स में भी डेबिट में मार्क करेंगे टू कैश अकाउंट 300. ठीक है तो सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए वन बाय वन वी विल स्टार्ट कास्टिंग कमीशन अकाउंट आप देखिए क्रेडिट साइड का बैलेंस शो कर रहा है यहाँ पर ठीक है सो व्हाट यू कैन डू you can take the total on both the side like this so credit side is more I can write over here 10,000 और बैलेंस कितना आएगा 10,000 ठीक है what we will write here to balance carried down तो जून में लास्ट डेट होता है 30th जून 2019 ठीक है और यही बैलेंस क्या होगा 1st जुलाई 2019 को ओपन हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 10,000 तो आपको क्लोज करके क्या करना है ओपन करना है राकेश का अकाउंट पहले ही क्लोज है कैश में देखिए क्रेडिट साइड का टोटल है 5,600 और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है दैट इज 13,150 आई विल टेक हियर 13,150 और माइनस करेंगे उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल 5,600 so 13,150 minus 5,600 7,550 is the balance so we will write by balance carried down ठीक है तो यहां पर इसे क्लोज करते हैं बाय मार्किंग डबल अंडरलाइन डेट आ जाएगा 30th जून 2019 ठीक है ओपन करेंगे 1st जुलाई 2019 टू बैलेंस brought down amount 7,550 so we have also closed with cash account so cash account क्लोज करने के बाद नेक्स्ट अकाउंट की तरफ आगे बढ़ते हैं आउटपुट CGST only 75 rupees
is there, so we will take the total 75 और बैलेंस भी क्या आ जाएगा 75 टू बैलेंस carried down on 30th June 2019. And later we will mark to balance brought down 75. Okay. Similar way, output SGST के साथ भी होगा, ठीक है, और वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट इनपुट में टोटल ले लेंगे 50 और बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर 50 रुपीज। ये बैलेंस हम मार्क करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 30th June 2019। नेक्स्ट टू बैलेंस brought down 1st July 2019 50 rupees। ओके, तो सेम थिंग इनपुट SGST के साथ में इस तरीके से बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट इज मंगेशस अकाउंट। मंगेश का अकाउंट क्लोज हो चुका था, परचेस अकाउंट है हमारे पास। सो परचेस अकाउंट को हम यहाँ पर 2000 रुपीज में क्लोज कर देंगे। बैलेंस इज 2000 बाय बैलेंस carried down on 30th June 2019। to balance brought down 2000। okay, रेंट अकाउंट तो यहाँ पर भी हम लोग 2500 का टोटल ले लेंगे बोथ द साइड। बैलेंस आ जाएगा 2500 ओपनिंग बैलेंस 2500। मोबाइल एक्सपेंसेस अगेन 700 रुपीज। टू बैलेंस कैरीड डाउन ओपन कर देंगे 700 रुपीज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेल्स 3000 रुपीज टोटल है, और बैलेंस आएगा 3000। यहां लिखेंगे टू बैलेंस
carried down 30th June 2019 और ओपन करेंगे 1 जुलाई 2019 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000। ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करते हैं, 300 टोटल है। तो यहाँ पर बैलेंस ले लेंगे 300 और फिर 1 जुलाई को ओपन करेंगे 300। इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को जर्नल एंट्रीज के थ्रू और लेजर के थ्रू कंप्लीट किया। सो डन फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा।